So how will define fake news? So fake news is a false or misleading information presented as a news. So it is a false and misleading information presented as a news. It is often has an aim of damaging the reputation of a person or entity or making money through advertising revenue. Either it has an aim of, what is the aim of fake news? Either the damaging the reputation of a person or entity or making money through advertising revenue. What is sensational news चला देंगे कि एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू आए फेक न्यूज़ के थ्रू एंड किसी पर्सन की इमेज को रेपुटेशन को डैमेज करना है तो फेक न्यूज़ चला देंगे कि ये बंदा बहुत मक्कार है करप्ट है तो उसको डैमेज करने के लिए. सो दिस आर टू मेन पर्पस with the aim of damaging reputation of person or making the money through advertising revenue. It is a false and news misleading information presented as a news. So what is the importance of the fake news and what is the aim of the fake news? So importance we know that in Bangladesh अभी क्या हुआ कि बहुत सारी information फैला दी on the social media that Hindus have disrespected the Holy Quran. So this has led to a lot of violence against the minorities in Bangladesh. What is the aim? Aim is to damage the reputation of a person or to earn revenue through advertisement. A reason to believe because they use authentic names like UNESCO. Even the authentic news channel many times spread fake news. How to stop and save ourselves? So she is a Professor Veena Das. She is an Indian in the Johns Hopkins University. And she is having a theoretical specialization including anthropology of violence, social suffering and the state. So she has written about rumors and social production of hate. तो hate जो fake news है यूज़ होती है, it is one of the reason behind social production of hate or rumors and lead to violence. तो major violence, for example 1984 Sikh violence and 1992 Babri Masjid demolition. So fake news was important source of mobilizing people. So there was a lynching of sadhus in Palghar. The incident was fueled by WhatsApp rumor of thieves operating in that area. So there was a WhatsApp rumor of thieves operating in that area and that led to the lynching of Hindu sadhus in Palghar, Maharashtra. So person who is spreading fake news can be booked under IPC 500, ITA 2000 under section 66 of IT Act and IPC section 153A, 153B if you are promoting enmity between groups and outraging religious outrage, religious feeling, you can be booked under IPC 295 capital A. So what is the reason of fake news? First one is political, to increase the reach of the political party and to decrease the reach of opposition, to increase the popularity of the party and to defame the other opposition party. Economic, to increase the revenue through the info for the fake news. And third one is sensationalization. And fourth one is destabilizing the harmony between the communities. For example, religious rights karana for the vested interests. So why we believe in a fake news? Network trust. जब कोई ऐसा बंदा भेजता है जिस पे हम ट्रस्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अपना क्लोज रिलेटिव भेज दिया, प्री कंसीव्ड बिलीव, फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि मुस्लिम से दंगा फैलाते हैं और कोई नई न्यूज़ आती है कि मुस्लिमों ने दंगा फैलाया, मारा कटी की, तो आपका प्री कंसीव्ड ऑलरेडी बिलीव है तो आप जल्दी विश्वास कर लोगे. सिंप्लिसिटी है. कोई सिंपल अगर झूठ बोले तो देयर इज़ मोर चांसेस टू बिलीव इन इट. और कोई बहुत ही हार्ड ट्रुथ बोले तो सिंप्लिसिटी होती है जिसकी वजह से हम बिलीव कर लेते हैं. सिंप्लिसिटी फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र की बेरोजगारी बढ़ रही है, हो सकती है बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग ड्रॉट, गवर्नमेंट पॉलिसी हो सकती है, लेकिन वो लोग बोल देंगे कि बिहार से मजदूर आए इसलिए बढ़ रही है. तो ये सिंप्लिसिटी है इस बात में, तो लोग मान लेंगे. देन इल्यूजरी ट्रुथ इफेक्ट. इल्यूजरी ट्रुथ इफेक्ट का मतलब है बार बार वही झूठ दिखाना. सपोज चाचा ने भेजा, फिर मामा ने भेजा, इन्होंने भेजा, तो एक ही चीज़ को बार बार लोग भेज रहे हैं तो हम सच मान लेंगे. तो इल्यूजरी ट्रूथ इफेक्ट. तो illusory means not real but also seem to be real. So what is the, कैसे पहचान सकते हैं कि फेक न्यूज़ है? टेस्ट दे रखा होगा तो सोर्स या लिंक नहीं होगा. फोटो दे रखी होगी उसको तोड़ मरोड़ के लिखवा देते हैं. देन वीडियो होगी तो वीडियो बता देंगे कि यहाँ की है बट दूसरी जगह की होगी. ऑथेंटिक सोर्स है, फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप पे अगर कोई चीज़ आई कि भूकंप आ रहा है, नहीं, ऑथेंटिक सोर्स पे जाओ, गवर्नमेंट वेबसाइट्स को फॉलो करो, तो ऑथेंटिक डेटा देखना चाहिए. So it can be used in GS paper 3, social media and networks internal security. So what are the things that give rise to fake news? Lack of regulation, communal polarization.
रेगुलेशन नहीं है, सब लोग अपना न्यूज़ डाले जा रहे हैं, कोई भी डाल सकता है. कम्युनल पोलराइजेशन प्रॉब्लम है, हिंदू मुस्लिम हेट फैलाने के लिए, कुछ अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट के लिए. सब पीपल ऑफ द वेस्टर्न इंटरेस्ट ट्राई टू स्प्रेड हेट्रेड इन द सोसाइटी. रीच बहुत ईजी है, क्विक गेन्स, फेक न्यूज़ फैला के अच्छे से रेवेन्यू मिल जाता है, चीप डेटा प्लान्स है. सो रिस्पॉन्स क्या, हम रेबिटल कर सकते हैं. रेबिटल मतलब क्या होता है कि ऑलरेडी किसी ने फैक्ट डाला, उसके लिए आप सही फैक्ट निकाल के लेके आओ और उसको बताओ. लेकिन ये कितना हो सकता है रेबिटल. सो rebuttal is instead of rebuilding evidence of an or an accuser. rebuilding evidence, दोबारा एविडेंस लेके आते थे, rebuttal. और removal of the fake news item and then educating the public. Current response to the fake news primarily involves around 3 prongs. तो 3 prong strategy क्या है, तो rebuttal, removal of the fake news item and educating the public. वे 8 क्या है कि बाई एड्रेसिंग द अंडरलाइन नेरेटिव्स, कि कौन फेक न्यूज़ चलाता है, किस तरीके से हमें ये पहले बता देना चाहिए कि इस बारे में फेक न्यूज़ फैल सकते हैं. देन बाई एड्रेसिंग द वीकनेस दैट अलाउ द फेक न्यूज़ नैरेटिव, जो भी वीकनेसेस हैं, जो फेक न्यूज़ नैरेटिव, जैसे हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए काम करना चाहिए कि कुछ वेस्टेड एलिमेंट्स हेट्रेड ना फैलाएं. मोबिलाइजिंग द पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट द हेट न्यूज़, रिप्लेस इट विद द अनदर नैरेटिव, लाइक रेबिटल करना, वही रेबिटल करना, रिप्लेस इट विद अनदर नैरेटिव बिल्ड्स ऑन फैक्ट्स. सो इस पर क्वेश्चन आ सकता है मीन्स में. इन द पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड, डिजिटलाइजेशन एंड फेक न्यूज़ बिकम अ डेडली कॉम्बो. डिजिटाइजेशन, फेक न्यूज़ बिकम अ डेडली कॉम्बो. डिस्कस what step can be taken to counter this menace. So these has become a deadly combo. For example, information warfare. The Pakistan uses information warfare against India. The use of ICT can be either be for the offensive defensive purpose, to immediately intrude, disrupt or control the opponent's resources. So what is disinformation? तो यही होता है फेक न्यूज़. इन्फॉर्मेशन दैट इज फॉल्स एंड डेलिबरेटली क्रिएटेड टू हार्म द पर्सन, सोशल ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंट्री. मिस इन्फॉर्मेशन क्या होती है, इन्फॉर्मेशन इज फॉल्स बट क्रिएटेड विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग हार्म. ठीक है, जो फॉल्स है, ठीक है, देखो मिस इन्फॉर्मेशन क्या होती है, फॉल्स है लेकिन इसलिए नहीं बनाई गई किसी को हार्म करने के लिए. डिस इन्फॉर्मेशन हार्म करने के लिए बनाई जाती है, डेलिबरेटली बनाई जाती है हार्म करने के लिए. मिस इन्फॉर्मेशन गलत है लेकिन हार्म करने के लिए नहीं है. मिस इन्फॉर्मेशन फॉर एग्जाम्पल सेंसनलाइजेशन करने के लिए, व्यूज़ बढ़ाने के लिए. फिर होता है माल इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन तो सही है लेकिन किसी को हार्म करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल हिंदू मुस्लिम वायलेंस से, वो मुस्लिम ने कहीं मारा, तो ये इन्फॉर्मेशन तो सही है लेकिन वो न्यूज़ फैलाई जा रही है कि और ज़्यादा दंगे बढ़ इंडिया में, तो ये माल इन्फॉर्मेशन. इन्फॉर्मेशन तो सही है बट यूज टू इन्फ्लिक्ट हार्म ऑन ए पर्सन, सोशल ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन और कंट्री. फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान क्लेम ब्लॉकिंग इंडियन सबमरीन. सो पाकिस्तान स्प्रेड दिस काइंड ऑफ फेक न्यूज़. सो पाकिस्तान स्प्रेड दिस काइंड ऑफ फेक न्यूज़ एवरी नाउ एंड देन. जैसे एक इनिशिएटिव लिया गया इंटरनेशनल लेवल पे, फाइट फेक न्यूज़, अंडर द ब्रिक्स मीडिया फोरम. सो ब्रिक्स मीडिया फोरम कब बना था, 2015 में, टू प्रमोट मीडिया कॉपरेशन. एंड नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट द फाइटिंग फेक न्यूज़, 2015. तो इंटरनेशनल लेवल पे लोगों को, कंट्रीज़ को शुड कम टुगेदर टू फाइट द फेक न्यूज़.